this is my Power BI. Open it. Open your first blank report in your system. Then first question is about Power Query. So how to start Power Query? बिकॉज आपके जो लास्ट क्लास में हमने 5 से 7 कंपोनेंट डिस्कस किए थे, उसमें फर्स्ट हमने था पावर क्वेरी, जिसमें हम क्या कवर कर रहे हैं, अपने कौन सा पॉइंट हमारा हाईलाइट है, जिसके अंदर हम डाटा ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो कि फर्स्ट स्टेप है, हमारा प्रायोरिटी स्टेप है किसी भी टूल के लिए। या आपके एक्सेल का सॉफ्टवेयर हो, या बात करें हम अपने किसी विजुअलाइजेशन टूल की, या बात करें हम किसी ईटीएल टूल की, तो सभी में मैंडेटरी क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की एनालिसिस वहां पर आपको करनी है। तो आपको पता है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है कि एनालिसिस पावर बीआई के अंदर हम कहाँ करेंगे, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन विद इन पावर क्वेरी। सो हाउ टू स्टार्ट पावर क्वेरी, you know? Don't know. Okay, so first step, open your blank report in your Power BI, start your system. Then under home tab, this is your file tab. From here you open this blank report. After this blank report, we have one tab with the name of hope. Under home tab we have option for the data. ये ऑप्शन किस लिए, कि यहाँ से हम अपने डाटा सोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि पावर बीआई इज ए वर्सटाइल सोर्सेज, उसके पास वैराइटीज ऑफ सोर्सेज हैं जो आपको हेल्प करेगा ऑल ओवर इंडिया से कनेक्टिविटी के लिए, कि आपके क्लाइंट कहीं पर भी हो तो उससे आपको प्रॉब्लम ना हो, कि आपके डाटा को आप किसी भी सोर्स के, किसी भी, अगर आपके क्लाइंट दूसरा कोई टूल ईटीएल टूल यूज कर रहे हैं और बट आपका कंपनी वो यूज नहीं कर रहा, सो यू आर एबल टू कनेक्ट ऑल्सो विद द सेम डाटा सेट, with the same tool, with the help of Power BI, because Power BI में क्या है, under home tab we have first option, that is get data, or if you are already aware about your data source, कि आपको already पता है कि your data set in Excel or in your SQL, so choose from here as well. But if you do not know कि Power BI का कैपेसिटी कितना है, किस किस सोर्स से वो कनेक्ट कर सकता है, सो फॉर दैट क्लिक ऑन दिस स्मॉल ड्रॉप डाउन आइकन. I hope it's visible to you. So click on it. See, this is common data sources. You are able to connect with Excel workbook, Power BI models, data flows, Dataverse, SQL, analytics services, text CSV data, web scraping data, O data feed, blank query, and many more as well. So for this class, we will select Excel workbook because our data is coming from Excel. So select Excel workbook, जहां पर भी आपका डाटा है, select it. Okay, so for Excel, just a minute. Okay, so I want this sales data, select it like this. Okay, now one pop-up screen is coming visible. So what header क्या है यहाँ पर, नेविगेटर. what is this navigator, you have any idea? अगर सौम्या, you saying in last class you know basic Excel or you know Excel, right? So can you please tell me what is this navigator? If you know Excel, so please tell me what is this navigator. Yes, Soumya. Sondra, are you hear me? No, So you know Excel, so please tell me what is this navigator. navigating the data which we need.
Sorry, your voice is not clear to me. The data which we Data which we. need to, yeah, transfer. Okay, so with the help of navigator we will do, right? Yeah, Okay, good. So navigator से आप अमित, what do you understand with the name of navigator? Ma'am, a dialog box which shows sheets, data, and tables, maybe like this. ला एक्सेल क्लासेस में हमने पढ़ा था नेविगेशन कमांड, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो अप एरो लाइक दिस। हमने क्या किया था, फोर हमारा क्या था, नेविगेशन कीज था, फॉर शॉर्टकट पढ़ा था हमने नेविगेशन शॉर्टकट्स। तो वो किसके लिए हेल्पफुल थी हमारे वहां पर, हमारे उस बैच के अंदर, फॉर द सिलेक्शन ऑफ द डाटा, राइट। सो नेविगेटर का भी सेम है। सो हाउ टू स्टार्ट पावर क्वेरी, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर, गो टू योर डाटा टैब, अंडर दिस डाटा टैब you have first section for get data, here you have multiple sources, जैसा कि आपने देखा, from here you extract your data and connect to your data source। देन उसके बाद आपके पास आता है नेविगेटर, जो अभी आपको स्क्रीन पर विजिबल है, राइट। सो नेविगेटर में क्या करना है आपको, नेविगेटर, व्हाट इज नेविगेटर, दैट इज माय क्वेश्चन। सो अब क्या होता है कि जब मैंने मेरा डाटा सोर्स चुना एक्सेल वर्कबुक, सो एक्सेल वर्कबुक के साथ में आपने देखा कि विद इन वन एक्सेल वर्कबुक वी हैव मल्टीपल स्प्रेडशीट, राइट। जो आपके पास एक्सेल ट्रेनिंग फाइल भी है उसके अंदर भी क्या है आपके पास, वर्कबुक सिंगल है विद द नेम ऑफ एक्सेल ट्रेनिंग फाइल, बट सिंगल वर्कबुक के अंदर अंदर स्प्रेडशीट कितना है, वेराइटीज है उसका, 15 से 20 स्प्रेडशीट है सिंगल वर्कबुक के अंदर। सो नेविगेटर का क्या पूछ रहा है कि अंडर वन एक्सेल फाइल डेफिनेटली चांसेस होते हैं कि दैट मैनी सीट्स इन वन एक्सेल फाइल इज हियर। सो अभी आपको दिख रहा है सेल्स डाटा, राइट। अभी सेल्स डाटा के अंदर बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है, सिंगल स्प्रेडशीट है विद द नेम ऑफ डाटा सिलेक्टेड लाइक दिस, राइट। इफ यू हैव मल्टीपल सीट एंड यू आर कंफ्यूज एनी टाइम कि किस सीट के अंदर यू हैव which variety of the data, which category of data, kind of the data, if you are confused, so here in your right hand side you are able to see what is in your this table, select it and your preview of your data is ready in on your right hand side। I hope it's clear to you, select it and you are able to see your data preview। सो यहाँ से क्या होता है, क्या आपको आइडिया लग रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि एक सेम डाटा को स्प्लिट कर दिया है टू शीट्स के अंदर। नाउ एट द टाइम ऑफ पावर क्वेरी फीडिंग आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच टेबल वी वांट, कौन सी टेबल का डाटा आपको फीड कराना है इन योर पावर क्वेरी एडिटर। सो आप सिंपल एक क्लिक करके प्रीव्यू कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको फिर से फाइल में जाके ओपन करना होगा एंड देन यू चेक इट, नो, check this dialog box and preview of your data is ready for you। सो यहाँ से आपको सारा का सारा क्या पता चला कि ओके अंडर दिस डाटा टेबल वी हैव this data। So check your preview and after this preview of the data we have these three dialog box, uh, load, transform and this cancel। So तीनों का डिफरेंट डिफरेंट यूज है। लोड से क्या समझते हो, जो फर्स्ट है आपका लोड। सो लोड का सिंपल मीनिंग क्या है, अगर इफ आई क्लिक ऑन दिस लोड, सो डायरेक्टली जो आपका डाटा है वो कहाँ चला जाएगा, इन योर पावर बीआई, राइट। बट पावर क्वेरी एडिटर को हमने ओपन किया है फॉर व्हाट, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डाटा, राइट। सो फर्स्ट व्हाट इज द ट्रांसफॉर्म डाटा, this is your second dialog box, transform data। when you click on this transform data, what it will do, it will take me to the power query editor directly,
visible? Just simple click on your transform data and it will take me to the Power Query editor. But if you don't want to make changes, manipulations, any transformation you do not want in your data, for that also we have option that is load. But for today's session, we want transformation in our raw data. So for that, go with this transform data tab. Otherwise, if you do not want transformation, simply load your data, right? जब आप ऐसा करते हो, load. If I close, just a minute. Wait, it is loading. Data is already loaded. See, ये आपका कहाँ आ गया? आपके पावर बीआई के अंदर आ गया. अब इसके अंदर आप देखें, आपके नंबर ऑफ कॉलम्स विजिबल हैं. यस. नाउ if I go to come back in my data, transform data, select this tab and come again in your Power Query editor. ऐसा नहीं है कि by mistake आपसे सिलेक्ट हो गया ट्रांसफॉर्म डाटा, या फिर ट्रांसफॉर्म आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है बट बाय मिस्टेक आपने लोड को चेक क्लिक कर दिया, तो आपका डाटा कहाँ चला गया? पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर चला गया, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर फीड करा दिया डाटा. तो ऐसा नहीं है कि अब आप उस पर एनालिसिस नहीं कर सकते. यू हैव ऑप्शन फॉर दैट एज वेल, जिसको हम डिस्कस भी करेंगे कैसे है. अभी के लिए इतना ही कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने फीड करा दिया तो आपके सारे डोर क्लोज हो गए कि अब आप उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करा सकते. नो, ऐसा नहीं है. यू आर एबल टू डू दैट, बट ये आपको पहले ही फर्स्ट स्टेप पे चेक करना होगा कि आपके डाटा का अगर आपको एनालिसिस करना है तो गो विद ट्रांसफॉर्म. अगर उसको डायरेक्टली लोड करा है, अगर उसको पहले ही आपने एक्सेल के अंदर एनालिसिस किया है, डाटा क्वांटिटी ह्यूज नहीं है, तो यू एनालाइज योर डाटा विद इन एक्सेल एंड देन डायरेक्टली लोड फॉर विजुअलाइजेशन. ओके, बिकॉज as compared to Excel, Power BI more flexible for your visualization or for your dashboard purpose. So अभी हमको डायरेक्टली क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज वी आर हेयर टू लर्न डाटा ट्रांसफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी एडिटर. सो यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपका फर्स्ट लेयर में क्या दिख रहा है? पावर क्वेरी एडिटर. अभी क्या ओपन है आपका? पावर क्वेरी एडिटर, जिसके अंदर हम क्या लर्न करेंगे? डाटा ट्रांसफॉर्मेशन. अब इस सीट को, पावर क्वेरी एडिटर की फर्स्ट सीट के लेआउट को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ताकि जो अपकमिंग क्लासेस होगी उसमें आपको ये ना लगे कि आपके लिए स्क्रीन नया है. आपको पता होगा कि मेरे लेफ्ट में क्या है, मेरे राइट में क्या है, अपर पार्ट क्या है, इसका बॉटम पार्ट क्या है, सारा आपको पता होगा कि स्क्रीन पर एक्चुअल में हो क्या रहा है. सो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है सौंदर्या? सेल्स डाटा. नेविगेटर स्क्रीन को फोकस किया था तो वहां पर सेल्स डाटा का जो टेबल था वो किस नेम से आ रहा था? डाटा. तो वो यहाँ पर भी किस नाम से फीड हुआ है? विद द नेम ऑफ डाटा. इफ यू वांट टू रीनेम योर टेबल, so for that we have option on your right hand side, query setting, properties, name. So I want to replace it with the sales data. इंस्टेड ऑफ डाटा गिव नेम सेल्स डाटा, ताकि हमें हेल्प रहेगा. ठीक है, सेल्स डाटा. देन अब सेल्स डाटा नेम हमने दे दिया. अब जैसे ही इसको आप एंटर प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट करेगा ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड एज वेल. अब आपके फर्स्ट डायलॉग बॉक्सेस क्लियर, नेम जहां से आप रीनेम कर सकते हैं. देन उसके नीचे आपके पास ऑप्शन में है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में अप्लाइड स्टेप्स. अब ये अप्लाइड स्टेप्स, सौंदर्या, इफ यू नो मैक्रो, you know basic of macro, Sondria, because Amit and Purnima know very well about macros, so it's helpful कि आपको भी पता हो basic of macro. हाँ, पत-
पता तो है। सॉरी, पता है। तो बेसिकली मैक्रो को अगर मैं एक डेफिनेशन में आपको बताऊं तो मैक्रो में क्या होता है कि जो भी आप स्टेप्स परफॉर्म करते हैं अपना मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके, जो भी आप वहां पर स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं वो रिकॉर्ड होते हैं इन वीबीए लैंग्वेज। बट वहां पर क्या हो रहा है, आपको वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना पड़ रहा है और आपका कैलकुलेशन, आपके स्टेप्स खत्म होने के बाद आपको मैनुअली उस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना होगा। देन फ्यूचर में उसका आपको नीड होगा, देन आप उसको यू आर एबल टू यूज इट अगेन इन योर सिस्टम और इन योर शीट। बट पावर क्वेरी उसका अपर पार्ट है, उसका एडवांस पार्ट है मैक्रोज का। तो यहाँ पर आप चेक करो, आपने कुछ भी मैनुअली नहीं किया। सोर्स था, व्हाट इज इन सोर्स? सोर्स, सोर्स मीन्स जो आपका डाटा सोर्स है वो क्या है, सोर्स है। अब सोर्स क्या है, ये स्मॉल गियर आइकन आपको विजिबल है, क्लिक ऑन इट। हर चीज को डीपली, हर एक आइकन को चेक करेंगे कि एक्चुअल में है क्या। अब सोर्स से हमें इतना तो पता चला कि हाँ, सोर्स हमारा यहाँ पर डाटा है। अब जैसे ही मैंने सोर्स किया मेरा सेल्स डाटा भी हाईलाइट हुआ। बट व्हाट इज दिस गेयर आइकन, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप अगर बाय मिस्टेक आपका सोर्स प्रॉपरली मैनर्स में नहीं है या कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज के कारण उसका फाइल पाथ करेक्ट नहीं है, तो आप यहाँ से अपने फाइल पाथ को क्या कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। या यहाँ से ओपन फाइल एज, आपको अपने सिस्टम का, आपको जो डाटा आपने फीड कराया, इन आपको कौन से फॉर्मेट के अंदर चाहिए, यू वांट इन टेक्स्ट फॉर्मेट, यू वांट इन जीएसएन, तो यू वांट इन पीडीएफ, select according to your requirement। so that is the use of this gear icon कि अगर आपको कुछ भी सेटिंग में चेंजेस करना है, so you are good to go with this source icon। ओके, सो दैट इज द यूज ऑफ सोर्स कि आप अपना फाइल पाथ, कि आपका डाटा कहाँ से फीड किया जा रहा है या आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, सो गो विद दिस स्मॉल गेयर आइकन। दैट वन स्टेप इज क्लियर? यस। यस मैम। नाउ सेकंड इज नेविगेशन। नेविगेटर एंड नेविगेशन सिमिलर है ना, साउंड कर रहे हैं सिमिलर सा, नेविगेटर एंड नेविगेशन तो सेम है। नेविगेशन कि अगर नेविगेशन टाइम पर आपसे कुछ भी मिस्टेक हुआ सिलेक्शन में, नेविगेशन के टाइम पर आपसे मिस्टेक हुआ, बाय आपको एक टेबल और फीड कराना था, इफ यू हैव 5 टेबल, बट बाय मिस्टेकली आपने एक ही टेबल को सिलेक्ट किया एंड आपसे हिट हो गया लोड या ट्रांसफॉर्म डायलॉग बॉक्स के ऊपर। बट अब आपको सारा का सारा सिस्टम क्लोज करके रीओपन करना पड़ेगा, नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपका ऐसा हो जाता है, नेविगेशन टाइम पर आपसे कुछ मिस्टेक हो गया है, देखो सोर्स के टाइम पे अगर कुछ मिस्टेक होता है तो वो कौन रिजोल्व कर रहे हैं, स्मॉल गेयर आइकन जो सोर्स के साइड, सोर्स के राइट हैंड साइड विजिबल है। देन सेकंड स्टेप, नेविगेशन के टाइम पर अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है तब भी बैक नहीं करना है, तब भी आपके पास क्या है, ये सेटिंग गेयर आइकन है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, देन एंड क्लिक ऑन दिस ओके एंड यू आर गुड टू गो। ओके, देन थर्ड स्टेप इज प्रोमोटेड हेडर। अब प्रोमोटेड हेडर, अब आपको, आप कुछ नोटिस कर रहे हैं स्क्रीन पर? गाइज एक बात मैं आपको, सौंदर्या, अमित और पूर्णिमा को बहुत अच्छे से पता है ये चीजें, कि मेरे ये पुराने स्टूडेंट्स हैं, इनको पता है कि मेरा मेथड क्या है टीचिंग का, बट यू आर न्यू फॉर मी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मुझे ये बताइए कि आपको मेरा लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में, जिस स्टाइल से मेरा पढ़ाना है वो आपको समझ आता है? यस मैम। ओके, सो आपको क्या करना है कि आपको हर स्टेप पर सौंदर्या, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, कान खुले, आंखें भी खुली, आपका फोकस स्क्रीन पर, और आपके कान, जो भी हेडफोन्स ईयरफोन्स आपने यूज किए हैं, मेरी वॉइस के ऊपर कि मैंने क्या बोला और स्क्रीन पर उसके अपोजिट में क्या रिफ्लेक्शन हुआ। राइट पूर्णिमा, यही करते हो? ये चीजें यस आपको मैम। करना है कि आंखें स्क्रीन पर और कान आपके
मेरी आवाज पर होनी चाहिए कि जैसा मैंने बोला देन उसके अपोजिट में स्क्रीन पर क्या रिफ्लेक्शन हुआ। अब मैंने पहले सोर्स किया, ठीक है, सोर्स से आपको पता चल गया कि दैट इज सेल्स डाटा, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ग्रिड आउट हो रहा है। देन नेविगेशन पर मैंने क्लिक किया, तब आपने देखा कि जो डाटा आपने फीड कराया वो आपको विजिबल हो गया। देन थर्ड स्टेप पर अभी आपको क्या दिख रहा है, आपको बहुत ध्यान से डीपली चेक करना है, क्योंकि हम यहाँ पर छोटी छोटी एनालिसिस करेंगे और डाटा कन्वर्ट हो जाएगा रो डाटा से इनसाइट्स के अंदर। इनसाइट्स पता है, यू नो इनसाइट्स, कि एक मीनिंगफुल डाटा वो आपका हो जाएगा रो डाटा से, ठीक है। नेविगेट हमने उसको कर दिया, मीन्स जो जो सिलेक्टेड फाइल्स थी, अनवांटेड फाइल्स को हमने रिमूव करा के यहाँ पे सिलेक्टेड फाइल्स को फीड करा दिया इन आवर पावर क्वेरी एडिटर। अब थर्ड स्टेप आपका मूव कर रहे हैं प्रोमोटेड हेडर। अब अगर इन दोनों में मैं आपसे कहूं, अमित, पूर्णिमा एंड सौंदर्या तीनों हूं आप, तीनों का फर्स्ट क्लास है ये ट्रांसफॉर्मेशन का, तो अब मैं तीनों ने स्क्रीन पर मैंने 2 से 3 बार आपको शो करा दिया है, नेविगेशन का भी स्क्रीन और प्रोमोटेड हेडर का भी स्क्रीन। तो क्या, कैन यू प्लीज टेल मी डिफरेंस बिटवीन बोथ दी स्क्रीन? अगर आपने कुछ भी सिंगल डिफरेंस नोटिस किया है, सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दी ऑप्शंस? मैम प्रमोटेड हेडर में कॉलम हेडर्स ले रहा है, मतलब कि रो का जो पहला रो है उसको बाय डिफॉल्ट ले रहा है कॉलम हेडर। राइट, नेविगेशन में अगर आप चेक करोगे तो वहां पर आपके कॉलम्स का नेम आपको नहीं शो रहा है। आपका जो कॉलम है वो कैसे शो करा रहा है आपको, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, लाइक दिस, विजिबल पूर्णिमा सौंदर्या, लाइक दिस, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ऐसे आपको करके दिख रहा है। बट जैसे ही आप मैंने थर्ड स्टेप पर क्लिक किया प्रोमोटेड हेडर, तो आपको क्या मिल गया यहां से, कॉलम नेम, फर्स्ट column name is your row id, second is your order id, third one is your order date, like this। तो वो क्या कर रहे हैं कि जब तक आप नेविगेशन पर हो तो वो क्या कर रहा है कि फर्स्ट रो को डाटा की तरह बिहेविंग करके आपको शो करा रहा है। बट जैसे ही आपने बताया प्रमोटेड हेडर कि मेरे इस डाटा के अंदर जो फर्स्ट रो है उसको एज एन हेडर प्रमोट किया जाए, तो उसने क्या कर दिया, आपकी फर्स्ट रो को एज एन हेडर कन्वर्ट कर दिया विद द नेम ऑफ द कॉलम नेम, राइट। अब ये दोनों पार्ट सोर्स एंड नेविगेशन हमने डिस्कस कर लिया कि ये हमारी अगर पास्ट में कुछ भी सिलेक्शन के टाइम पर हमसे मिस्टेक हुआ तो ये दोनों उसका अपकमिंग पार्ट है कि यहाँ से हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे, यहाँ से हम उसको रिजोल्व कर लेंगे। बट प्रोमोटेड हेडर करके आपने कुछ भी पहले पिछली 10, 15, 20 मिनट्स में सुना कि हमें कहीं पर हेडर भी सिलेक्ट करना था, यस और नो? नो, राइट। तो अब अगर आपसे, अगर आपको बाय मिस्टेक यहाँ पर विजुअल, अगर सी यहाँ पर कॉलम 5 आपको दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट ये मिल ही गया, दिख रहा है कॉलम 5, अभी तो ये नल है, सो दैट्स वाई इट इज शोइंग कॉलम 5, क्योंकि यहाँ पर कैसा भी डाटा फिल नहीं है। बट ये मशीन है, सॉफ्टवेयर है, इससे भी मिस्टेक्स होती हैं, टेक्निकल इश्यूज सॉफ्टवेयर में भी होता है। तो आपको एक बार क्या कर लेना है, क्रॉस चेक हमेशा करना है। क्या करना है, क्रॉस चेक हमेशा करना है इफ योर डाटा इज केस सेंसिटिव, ओके, sorry, not case sensitive, your data is sensitive, so at that time check your data, at least 2 time check your data। आई ऑलवेज एडवाइज कि कभी भी अगर किसी कॉन्फिडेंशियल डाटा पर आप काम कर रहे हो, योर डाटा इज सेंसिटिव, सो चेक इट 2 टाइम। सो प्रोमोटेड हेडर में अभी तो इसका कोई मीनिंग नहीं है बिकॉज डाटा कॉलम इज नल। बट अगर बाय मिस्टेक यहाँ पर डाटा है और यहाँ पर नेम क्या होगा, कॉलम 5, इंस्टेड रेदर देन योर कॉलम नेम, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको एज एन रो बिहेव कराया जा रहा है। तो कहाँ पर आपको ये चीजें करानी होगी, मैनुअली, ये ऑटोमेटिकली स्टेप्स हैं, बट मैनुअली कहाँ पर होगा, अंडर होम टैब,
In Power Query Editor, under Home tab, we have the option that is transform. In this transform data tab, we have one option with the name of use first row as header. क्लियर? अब क्या फर्क आया कि अगर बाय डिफॉल्ट कोई स्टेप एडिड है बट आप उसको रीडू करते हैं तो आपको क्या करना है, वो यहाँ पर देख रहे हो सेम नेम से है प्रोमोटेड हेडर, बट यहाँ पर क्या अपडेट हो गया, प्रोमोटेड हेडर 1 मीन्स ये स्टेप फर्स्ट हुआ था, देन क्रॉस चेकिंग के लिए आपने फिर से स्टेप को परफॉर्म किया तो वो स्टेप किस नेम से रिकॉर्ड हो गया, विद द नेम ऑफ प्रोमोटेड हेडर 1। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, रेयर चांसेस होते हैं कि हमें एक स्टेप को रीडू करना पड़े, बट अगर नहीं है सो गो इन सीक्वेंस। तो थर्ड स्टेप क्या है, बाय डिफॉल्ट आपको मिला है प्रोमोटेड हेडर का, अगर किसी टाइम पर नहीं मिलता है किसी डाटा के लिए, सो गो टू योर होम टैब, अंडर होम टैब वी हैव ऑप्शन फॉर दिस ट्रांसफॉर्म यूज फर्स्ट रो एज हेडर, सिलेक्ट इट एंड हिट ऑन एंटर। ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके डाटा को हेडर यहां से प्रोवाइड होगा। थर्ड स्टेप इज क्लियर टू यू? देन लास्ट स्टेप चेंज टाइप। अब प्रोमोटेड हेडर का स्क्रीन चेक कर लीजिए, ठीक है, और यहां पर आ जाइए चेंज टाइप के अंदर, क्या शो करा रहा है, चेंज टाइप प्रोमोटेड हेडर के अंदर शो करा देती हूँ। सी टाइप, चेंज टाइप का बेसिक आप यहां से, अगर चेंज टाइप से यहां पर मतलब है डाटा टाइप। अब मैंने आपको बताया कि वी हैव कैटेगरीज इन डाटा, वी हैव डेट टाइप फॉर्मेट, we have text data type, we have numbers data format। सो अगर आप प्रोमोटेड हेडर में चेक करें तो आपको हर कॉलम नेम के लेफ्ट में क्या दिख रहा है, एक जनरल फॉर्मेट दिख रहा है, टेक्स्ट एज वेल एज नंबर, टेक्स्ट एज वेल एज नंबर, टेक्स्ट एज वेल एज नंबर, टेक्स्ट नंबर, टेक्स्ट नंबर। सो जब मैंने चेंज टाइप स्टेप पर, फोर्थ स्टेप को हम कर रहे हैं चेंज टाइप, तो यहाँ पर आप दिख रहे हैं वो जनरल फॉर्मेट ना होके क्या हो रहा है, आपकी रो आईडी में किस टाइप का डाटा है। यस सौंदर्या, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस डाटा? न्यूमेरिक। न्यूमरिक। सो फॉर न्यूमरिक it's showing 1 2 3, right? And for in your second column, which type of data we have? Text. So for text we have ABC, but अगर आप थर्ड डाटा, थर्ड कॉलम ऑर्डर डेट चेक करें तो क्या है हमारे पास, डेट का कौन सा फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाइड है, नंबर फॉर्मेटिंग हमने लर्न किया है, राइट? फॉर नंबर एडिटिंग वी हैव वन शॉर्टकट दैट इज Ctrl+1। यस पूर्णिमा, Ctrl+1 and Ctrl+3। यस अमित, यू नो? Yes, ma'am. सो अभी बाय मिस्टेक क्या है, आपके पास टेक्स्ट भी है एंड नंबर्स भी है, डेट को हमने फॉर्मेट किया है नंबर फॉर्मेट में, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या शो करा रहा है कि नंबर एज वेल एज टेक्स्ट डाटा वी हैव इन दिस कॉलम। तो अगर आपको इसको चेंज करना है, बिकॉज वी नो वी आर फेमिलियर विद दिस डाटा, और बाकी हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को रीड किया है केयरफुली, अगर रीड किया है तो हमारे वहां पर हर एक पर्टिकुलर कॉलम का डाटा टाइप मेंशन होता है कि आपका थर्ड कॉलम का जो ऑर्डर डेट कॉलम है उसका डाटा टाइप क्या होगा, डेट, और डेट एंड टाइम लाइक दिस। सो सिलेक्ट अकॉर्डिंग, अगर वहां पर डेट मेंशन है तो सिलेक्ट योर डेट, जैसे ही आपने डेट सिलेक्ट किया तो वो कन्वर्ट हो गया डेट में, और यहाँ पर आपको क्या शो हो रहा है, अब आपको आपके कॉलम के राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या शो हो रहा है, डेट डाटा टाइप। देन फोर्थ के लिए सेम। मैम यदि फॉर्मेट पहले से पता ना हो तब कैसे पता चलेगा इसमें? सी
फॉर्मेट पहले से पता ना हो। तो अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे ऐसे काम कर रहे हैं अमित, तो यू आर अवेयर अबाउट दिस फॉर्मेटिंग ऑफ द डाटा, यू नो नंबर फॉर्मेट, यू नो टेक्स्ट, यू नो डेट। अगर आपका रिक्वायरमेंट और भी डाटा टाइप्स का है, जीएसएन का है, एचटीएमएल का है, तो आप उनके साथ फैमिलियर हो गए। यस, आपको देखते ही डाटा सेट पता चल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिप मोड कॉलम का डाटा टाइप क्या है, तो कैन यू प्लीज, आर यू एबल टू टेल मी? Yes, ma'am. Text. टेक्स्ट। तो आपको पता है, क्योंकि आप इस पर सीख चुके हो, ये कमांड है आपके पास, राइट? Yes, सेकंड, ma'am. फर्स्ट हो गया नॉलेज। सेकंड, जब आप किसी प्रोजेक्ट पर, किसी कंपनी में किसी डाटा पर काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको उन्होंने बोल दिया और आपने कर दिया, नहीं। आपको रिटर्न में मिलता है सब कुछ। एक अच्छे खासे पेजेस का रिपोर्ट आपको मिलता है, जहां पर हर एक सिंगल स्टेप मेंशन होगा कि सेल्स डाटा हम आपको दे रहे हैं, इस डाटा के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट ये है, ये इनसाइट्स आपको जनरेट करने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 20 होंगे, अगर एक्सीड हुआ तो चार्जेस इतना आपको पे करना होगा। तो ये सारी चीजें रिटर्न में आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिलेगा, रिटर्न में पूरा रिपोर्ट आपको मिलेगा कि वी वांट आवर प्रोजेक्ट इन दिस मैनर। ओके, तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड, सेकंड चीज ये है। यस, आई होप नाउ योर क्वेश्चन इज क्लियर। Yes, ma'am. फिर यहाँ पर शिप डेट। अब आप, अगर मैं आपको बोलूं कि फोर्थ कॉलम आप चेक करो, तो यहाँ से कॉलम नेम है शिप डेट, बट यहाँ पर आपको नंबर्स दिख रहे हैं। बट अब आप ये चीजें सीख चुके हो कि आपको पता है कि डेट को भी हम शो करा सकते हैं एज ए नंबर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिंग, राइट? तो कॉलम नेम से आपको पता चल रहा है कि ये डेट कॉलम है, तो आप यहाँ पर मैनुअली, ये तो बात हो गया चेंज टाइप, कि ये प्रोमोटेड हेडर में सबके लिए एक जनरल फॉर्मेट था, बट जैसे ही आपने चेंज टाइप ऑप्शन किया, वहां पर मैन आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया हर एक का। बट अगर बाय डिफॉल्ट किसी के लिए एक्यूरेसी आपको नहीं मिलता है, तो मैनुअली चेक कैसे करोगे? सिलेक्ट इट एंड चूज योर डेट फॉर्मेट, रिप्लेस करंट। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि हम चेंज टाइप का एक और स्टेप ऐड कर दें रिकॉर्ड अप्लाइड स्टेप्स के अंदर, या रिप्लेस कर दे करंट वन को। सो रिप्लेस करंट, कि जितना कम स्टेप्स हो उतना आपका इफिशियंसी क्या होगा, डाटा का अच्छा होगा, राइट? अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको वेट लिफ्ट करना है 10 kg, और सेकंड आपने कर लिया, और वो वेट 10 kg वेट लिफ्ट करने के बाद आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है 10 किलोमीटर का, तो कितनी देर में आप करोगे? 15 मिनट्स फॉर एग्जाम्पल, राइट? दूसरा मैं आपको बोलूं कि आपको वेट लिफ्ट करना है 2 kg, तो प्रोबेबली आपका स्पीड थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। यस और नो? क्योंकि अगर आपने कुछ ज्यादा वेट लिफ्ट किया है, तो आपका उतना स्पीड नहीं होगा जितना कम वेट के साथ होगा, राइट? सेम सॉफ्टवेयर का है। अगर फोन हैंग होता है ना, सबका हो जाता है, किसी ना कभी किसी सबका हुआ होगा, तीनों में तीनों का हुआ होगा, आपका मेरा भी होता है, कि जब स्टोरेज फुल हो जाता है उसका, तो फोन का प्रोसेसर स्लो हो जाता है, राइट? तो हम वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स डिलीट करते हैं, फोटोज डिलीट करते हैं, एप्स रिमूव करते हैं। ये चीजें सबने अपनी डेली लाइफ में किया है। तो वो किस लिए? कि बर्डन कम हो जाए। तो सेम सॉफ्टवेयर का भी है, जितना ज्यादा स्टेप्स का लिस्ट होगा, उतना ही उसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। सो फॉर बेटर इफिशियंसी ऑलवेज कीप फ्यू क्वांटिटी ऑफ स्टेप्स। हमेशा आपका कोशिश क्या होना चाहिए? ऑलवेज ट्राई कि आपका जो लिस्ट हो वो कम नंबर्स का ही क्रिएट हो। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएट न्यू स्टेप, रिप्लेस करंट वन। पता चल गया कि बाय डिफॉल्ट या तो चेंज टाइप ऑप्शन है, या फिर आपको क्या करना है, आपके कॉलम हेडर के लेफ्ट हैंड साइड में जाके आपको मैनुअली क्या कर देना? चेक कर देना है, राइट? नाउ
I want to tell you one more thing. Just a minute. Okay, so we will back. चेंज टाइप हमने डिस्कस किया, तो चेंज टाइप में आपको पता है कि वैरायटीज ऑफ डाटा टाइप हमारे पास है और ये सिस्टम है। यहाँ इससे भी मिस्टेक होता है। अभी आपने देखा है कि चेंज टाइप में हमने रिप्लेस टाइप को, डाटा टाइप को चेंज किया है। क्यों? क्योंकि ये मशीन है। क्या है? मशीन है। और समटाइम्स क्या होता है कि मशीन से भी मिस्टेक्स होती हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर डेट और शिप डेट के अगर बारे में हम डिस्कस करें तो इनका डाटा टाइप क्या था? इनएक्यूरेट था। यस। So what I suggest you, according to my experience, always cross check again, because Power Query might add wrong data type. Few times it's happened. So always check your data types manually. Then अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस क्लास का कि अगर एक्सेल आप तीनों को आता है तो एक्सेल में जब हम कुछ भी एडिटिंग करते हैं, पूर्णिमा, अमित, सौंदर्या, कभी भी आप ये चीज नोटिस करना कि जब एक्सेल के अंदर हम एडिटिंग कर रहे हैं तो वो एडिटिंग कहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है? अगर मैंने एक सेल को सिलेक्ट किया और उसमें मैंने कुछ भी एडिटिंग किया, अगर मेरे इस सेल के अंदर 4 है, अब मैंने इसको एडिट कर दिया 5 ऐसे, तो वो हो जाएगा यस और नो? ये चीजें किसने नोटिस किया है? किया है सिस्टम के अंदर ये चीज आपने? सबने किया होगा, राइट। बट अगर आप पावर क्वेरी एडिटर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो आप चेक करके देखिए। फॉर एग्जांपल 8 को मैंने सिलेक्ट किया एंड आई प्रेस 7, कुछ भी रिफ्लेक्शन हो रहा है स्क्रीन पर? यस और नो? नथिंग इज हैपनिंग, बिकॉज पावर क्वेरी एडिटर के ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिंगल सेल के लिए नहीं है। पावर क्वेरी इज नॉट फॉर सेल ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। वो आपको ऐसे ही एक स्क्रीन शो कराएगा और आपको बोलेगा चेंज इट, आई वॉन्ट 9 instead of 9 I want 10 June 2014 in my data, change this cell। सो उस टाइम पर आपका आंसर क्या होगा कि पावर क्वेरी इज नॉट फॉर सेल ट्रांसफॉर्मेशन सर, इट्स फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो कभी भी सेल ट्रांसफॉर्मेशन आपका नहीं होगा विद इन योर पावर क्वेरी एडिटर। We don't directly change data because Power Query is not the owner of this data source। डाटा सोर्स कहां से आ रहा है? पाथ देखा ना, कहां से आ रहा है? बाय क्लाइंट। तो यू आर, पावर क्वेरी इज नॉट द ओनर ऑफ द डाटा। सो ऑलवेज चेक योर डाटा। सेकंड चीज कि अब हमने ये चीजें जो आज की क्लास में हमने देखा, हमने राइट हैंड साइड डिस्कस कर लिया, हमने लेफ्ट हैंड साइड डिस्कस कर लिया। अपर के पार्ट्स के कुछ टैब्स हैं, होम टैब, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, इनको हम अपकमिंग क्लासेस में डिटेल में हर टैब को डिस्कस करेंगे। बट नोटिस क्या करना है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको चेक करना है कि मेरा मानना है कि जब भी आप किसी भी डाटा पर काम करें, मैंने अब तक बोला क्रॉस चेक योर डाटा, बट क्रॉस चेक तो करना है, बट एक कॉपी ओरिजिनल डाटा का हमेशा आपको स्टोर बैकअप के लिए रखना होगा। कि अब अपकमिंग क्लासेस में हम जितना भी क्या करेंगे, मैनिपुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन जो भी करेंगे वो इस डाटा पर करेंगे। बाय मिस्टेक अगर उसमें हमसे कुछ इश्यू हो जाता है, कुछ डाटा मिसिंग हो गया, डिलीट हो गया बाय मिस्टेक, तो क्या हम उसको रीडू कर पाएंगे? यस और नो? मे बी समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल। यस। सो क्या करना है, कॉपी हमेशा क्रिएट करना है। कॉपी कैसे क्रिएट करोगे? कम ऑन योर क्वेरी सेक्शन, सिलेक्ट योर डाटा लाइक दिस, राइट क्लिक एंड कॉपी योर डाटा।
सो कॉपी एंड डुप्लीकेट, अब जैसे ही मैंने बोला कॉपी नहीं हुआ, बट इफ आई क्लिक ऑन दिस डुप्लीकेट, सी, सो ये चीज भी हम डिस्कस करेंगे. सो ऑलवेज कीप, इंस्टेड ऑफ कॉपी, कीप डुप्लीकेट ऑफ योर डाटा. क्लियर? पता चल गया क्या रखना है, कॉपी रखना है, डुप्लीकेट रखना है गाइस? डुप्लीकेट रखना है. जिस भी ओरिजिनल डाटा पर आप मैनिपुलेशंस अप्लाइड कर रहे हो, उस डाटा का आपको क्या रखना है, एक डुप्लीकेट कॉपी आपको उसका रखना है. अब ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया. अब आपका फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, सपोज इट. अब हाउ यू गेट योर डाटा इन योर एक्सेल फाइल बैक? ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया, फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेशन इज कंप्लीटेड नाउ. तो व्हाट डू यू नाउ? अब आपको सारा का सारा जितना आपने नेविगेशन यहाँ पर कर दिया, हेडर्स का कर दिया, डाटा टाइप चेंज कर दिया, अब इसको आपको वापस इसका चाहिए एक्सेल फाइल. सो व्हाट डू यू डू? Come in, on your left hand side we have this option that is close and apply, and I hope this small drop down icon again visible on my screen, click on it. अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं. ये इसलिए कि जब आज का क्लास फिनिश हो जाएगा तो जितनी भी मैनिपुलेशंस हमने अभी तक की है वो क्या हो जाए, स्टोर हो जाए. वरना अदरवाइज आपको क्या करना होगा, ये चीज अभी मैंने आपको नहीं बताई और अपना टाइम क्लास का ओवर हो जाता है, तो ये सारा का सारा आप कैंसिल कर दोगे, जिससे ये आपके सिस्टम के अंदर सेव नहीं होगा. आपको फिर से सिस्टम ओपन करना होगा, नेक्स्ट क्लास में फिर से डाटा को फीड कराना होगा विद द हेल्प ऑफ नेविगेशन, एंड चारों स्टेप्स का जो अप्लाइड स्टेप्स आपके हैं ये आपको रीडू करना होगा, राइट? बट ऐसा नहीं है कि जितनी बार आप पावर क्वेरी एडिट को ओपन क्लोज करोगे सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपको रीडू करना है. नो, क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन आइकन, क्लोज एंड अप्लाई. तो क्लोज एंड अप्लाई क्या है? क्लोज द क्वेरी एडिटर विंडो एंड अप्लाई एनी पेंडिंग चेंजेस. हर एक का डेफिनेशन, अप्लाई एनी पेंडिंग चेंजेस, close the power query editor window without applying pending changes. So close and apply. कि हमें क्या करना है, हमें वापस इस पर आना है, जो चेंजेस पेंडिंग है वो भी हम इस पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. सो क्लोज एंड अप्लाई and you get your data in your system. See, sales data and sales data 2 डाटा आपका लोड हो गया. अब डाटा लोड होने के बाद, ओके मैम आपने मुझे ये बता दिया कि मेरा डाटा लोड हो गया, ऐसे कि जो जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अब तक इस डाटा पे अप्लाई किया वो मेरा अब हो गया यहाँ पर. अब अगर मैं अपना डाटा चेक करूं, चेक कहाँ से करेंगे, व्यू के अंदर. यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर, अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, डिस्कस करेंगे, अभी के लिए मैं आपको शो करा देती हूँ. एक्सेल के अंदर ऐसे डाटा शो होता है. अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि मैंने जो जो स्टेप्स अप्लाई किए थे, मैंने शिप डेट को चेंज कर दिया था डेट फॉर्मेट में, मैंने ऑर्डर डेट को भी डाटा टाइप चेंज कर दिया था नंबर से डेट में, तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है. बट मैनिपुलेशन पेंडिंग है, अभी मुझे 2-3 ट्रांसफॉर्मेशन और भी करनी है, मुझे डुप्लीकेट सी रिमूव करनी है, मुझे काफी चीजें और रिमूव करनी है, एड ऑन करनी है. तो मुझे फिर से कहाँ जाना है, I want to go back in Power Query Editor once again. How it's possible? Yes, मैंने already कहा it's possible, but how? Under Transform. Home tab we have option for queries. और जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा कि क्वेरी क्या है, जो डाटा हमने फीड कराया है, that is the query. So we want transformation in our query. So click on this drop down icon. अब डाटा सोर्स सेटिंग एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, वी वांट ट्रांसफॉर्म डाटा, सो हिट ऑन एंड इस आइकन, इस टैब की हेल्प से हम कहाँ आ गए, कम बैक अगेन इन आवर पावर क्वेरी एडिटर.
अब बाकी के मैनिपुलेशंस हम कहाँ अप्लाई करेंगे, फिर से यही पावर क्वेरी एडिटर के अंदर करेंगे। अब वन बाय वन सारे स्टेप्स को एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस होम टैब, फाइल के अंदर सबको पता है एक ब्लैंक वर्कबुक है। अब होम टैब के अंदर क्या है, अंडर होम टैब क्या है, न्यू सोर्स, कि आपका सोर्स क्या होगा। अगर आपको यू वांट वन मोर फाइल विद इन योर पावर क्वेरी, in your power query editor for your analysis, your requirement is for one more file. So यहाँ से आप क्या, अब आपका जो सेकंड फाइल है मे बी उसका डाटा सोर्स डिफरेंट हो, वो एक्सेल से ना हो कि क्या हो, वो डाटा फीड से हो या वेब का हो या टेक्स्ट का हो, तो आप अपना न्यू फाइल कहाँ से इंस्टॉल करेंगे, विद द हेल्प ऑफ न्यू सोर्स। मेरा आगे जाके ये क्वेश्चन होगा, आगे जाके हमें नीड होगा कि हमें एक्स्ट्रा फाइल का हमारी एनालिसिस के लिए रिक्वायरमेंट होगा, उस टाइम पर आपसे ये क्वेश्चन पुट ऑन मैं करूंगी कि कहाँ से हमें ये चीजें फीड करानी होगी। सो वेयर इज द ऑप्शन, ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड विद द नेम ऑफ न्यू सोर्स। देन रिसेंट सोर्स के अंदर अगर आप बात करें तो रिसेंट सोर्स हमारा क्या है, एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल का जो डाटा मेरे सिस्टम के अंदर है वो बाय डिफॉल्ट आपको शो हो रहा है। देन मैन्युअली अगर आपको एक टेबल क्रिएट करना है, सो एंटर योर डाटा, फिर वो आपका क्या हो जाएगा, योर न्यू क्वेरी। ठीक है, क्योंकि हम इनको क्या बोल रहे हैं, क्वेरी तो बोल रहे हैं। अभी हमारे पास कितना क्वेरी है हमारे इस पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, 2 क्वेरी सेम है, बट दोनों में क्या है, सेम डाटा है, बट हमने अपनी बैकअप के लिए एक का डुप्लीकेट डाटा हमने स्टोर किया है, sales data and sales data too. You want more files, if you want from new source, go with this new source. If you want your data from recent source, that is Excel, so for recent. If you want manually data, so enter data is for that, it's help you for this kind of situation. Then we are talking about transform। सारा का पावर क्वेरी एडिटर के अंदर किस लिए आए हम, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अब मैंने आपको बताया चेंज टाइप। अब ये तो अप्लाइड स्टेप्स, मतलब कि ऑलरेडी जो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली हमें मिला है, ये तो वो चीजें थी अब तक। तो प्रोमोटेड हेडर का मैंने बता दिया कि अंडर होम टैब वी हैव ऑप्शन, if you want manually, so under home tab we have option use first row as header, but for change type जनरल अप्रोच मैंने आपको बता दिया कि कम इन दिस स्क्वायर बॉक्स एंड सिलेक्ट योर डाटा टाइप एंड हिट ऑन एंटर। बट डिटेक्ट डाटा टाइप क्या है, आपका एक ऑप्शन है अंडर ट्रांसफॉर्मेशन टैब, यू हैव ऑप्शन दैट इज डिटेक्ट डाटा टाइप। मतलब वो आपका क्या करेगा, हर एक कॉलम का डाटा टाइप को डिटेक्ट करेगा। इफ आई क्लिक ऑन दिस, सी डिटेक्ट डाटा टाइप क्या कर रहा है, हर एक का उसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, डाटा टाइप को डिटेक्ट कर रहा है वो। सो दैट इज द ऑप्शन फॉर दिस, डिटेक्ट डाटा टाइप। इफ यू वांट टू रीनेम एनी कॉलम, so rename row id, if you selected this order id and you want to rename it, so that's how you rename your data। but ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, जो डाटा आपने फीड कराया है आप ट्राई कीजिए कि सेम नेम से आपने जो डाटा फीड कराया है उसका एनालिसिस आप वैसे ही करें। अदरवाइज अगर फ्यूचर में आपको, क्योंकि हम पावर क्वेरी एडिटर को जो लर्निंग हमारी है वो किस लिए है, ऑटोमेशन के लिए है। अगर ऑटो कंटिन्यूअसली फीडिंग हमारे डाटा के अंदर हो रही है हमारे डाटा सोर्स से, अभी हमने जो डाटा फीड कराया है वो स्टैटिक डाटा है, वो पता है हमें कि वो रेस्ट मोड पर है। बट अगर कंटिन्यूअस डाटा फीड हम करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेब और अनदर डाटा कनेक्शन लाइक एसक्यूएल और लाइक दिस काइंड ऑफ डाटा सोर्स, तो वहां पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस फीडिंग चल रहा है डाटा का। तो वहां पर उस केस में क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा
कि जो डाटा स्ट्रक्चर हमने वहां पर मेंशन किया है, उस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो सेकंड कॉलम नेम क्या है, प्रेजेंट है विद द नेम ऑफ ऑर्डर आईडी, but instead of order id I will change it, that is order quantity like this और order value like this। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे इस डाटा को पुट कहाँ करना है, तो वो उसको सेकंड कॉलम के अंदर पुट ना करके वो क्या करेगा, एक और नया कॉलम क्रिएट कर लेगा जहां पर वो उस डाटा को फीड कराएगा। तो आपका उस एक मिस्टेक के कारण सारा का सारा डाटा एक्यूरेसी कन्वर्ट हो गया इनएक्यूरेसी के अंदर, क्योंकि आपका एक नया कॉलम होगा तो यहाँ पर वो डाटा एंटर नहीं होगा, यहाँ पर सारा नल डाटा शो करेगा। और इस डाटा का जो एक्चुअल प्रेजेंट डाटा है वो एक अनदर कॉलम क्रिएट हो चुका है विद इन योर टेबल। सो ये इस टाइप का मिस्टेक कभी भी नहीं करना टेबल स्ट्रक्चर के साथ। आई होप जो चीजें ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने सीखी, जो स्क्रीन हमने आज डिस्कस किया, वो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? यस अमित, पूर्णिमा, सौंदर्या। अब इस ट्रांसफॉर्म टैब को हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे अपने कल की क्लास में। व्हाट सी यू, अब ये सारे स्टेप्स क्या हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशंस के हैं। यूज फर्स्ट रो एज हेडर, होम टैब के अंदर भी आपके पास ये ऑप्शन था, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। देन डिटेक्ट द डाटा टाइप, जो हमने चेंज डाटा टाइप के अंदर किया। प्रोमोटेड हेडर आपका हो गया। नेविगेशन का हमने ऑलरेडी नेविगेटर के टाइम पे डिस्कस कर लिया था। अब जो रिमेनिंग पार्ट है, रिप्लेसेस वैल्यू, रीनेम, पाइवट, अनपाइवट, मूव, स्प्लिट कॉलम, इसको हम डिटेल से करेंगे अपनी अपकमिंग क्लासेस के अंदर। ओके सौंदर्या, अब आपको पता है कि डाटा के अंदर आपके पावर बीआई के अंदर आपको ट्रांसफॉर्म पावर क्वेरी एडिटर के अंदर डाटा को फीड कैसे कराना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आपको पता है कि उसको फीड कैसे कराना है, किस डाटा सोर्स, अगर डाटा सोर्स एक्सेल होगा तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, डाटा सोर्स एक्सेल। अगर आपका डाटा सोर्स एसक्यूएल है, कोई डाटाबेस है, तो आप वहां पर डाटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका डाटा वेब से आ रहा है तो व्हाट इज योर डाटा सोर्स एट दैट टाइम, सौंदर्या? If your data is coming from web, so what is your data source at that time? Web. Web. Okay. Purnima, everything is clear till here, or you have any doubt, any confusion? No, ma'am, not yet. Okay. मैम, Yes, Amit. यदि एक्सेल से जहाँ से मेरा डाटा सोर्स है वहां पे यदि कोई न्यू एंट्री हुई उसी सीट में, तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा या फिर? इसको भी हम ये हमारा अपकमिंग क्लास का क्वेश्चन है, इसको आप खुद देखोगे कि वो कैसे बिहेव करता है। बट अमित, एक चीज मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका जो एंट्री हो रहा है आपके एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर, अगर एंट्री हो रहा है, अगर वहां पर नंबर ऑफ कॉलम, वहां पर एक रूल है, नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम। ओके, और सेम मैनर्स के अंदर, ऐसा नहीं कि जैसे आपने डाटा को फीड करा दिया लाइक दिस इन मैनर, फर्स्ट इन रो आईडी, सेकंड इज ऑर्डर आईडी, थर्ड वन इज ऑर्डर डेट एंड फोर्थ वन इज शिप डेट। बट जो न्यू एंट्री आपने की वो कैसे की, ऑर्डर आईडी, रो आईडी, शिप डेट, ऑर्डर डेट, मतलब कि इंफॉर्मेशन तो कंप्लीट है बट मैनर्स उसका था जो उसका सीक्वेंस नहीं है, तो वो सारा का सारा इनएक्यूरेट डाटा आपका हो जाएगा। जिस सेम सीक्वेंस में आपने, आपका एग्जिस्टिंग टेबल है, उसी सेम सीक्वेंस के अंदर आपका न्यू एंट्री अगर आप फीड कराते हो तो वो ऑफ कोर्स आपके रिफ्लेक्ट करेगा इन योर पावर क्वेरी एडिटर, बिकॉज पावर क्वेरी एडिटर इज ऑल अबाउट ऑटोमेशन पार्ट that we will see in our upcoming classes. Got it? यस मैम। क्या सीखा कि सीक्वेंस शुड बी सेम, whenever you feed new data in your existing table, always keep sequence same. Okay, ओके। so that's for all today.
So if you have any query regarding today's class, Sondria, Amit, Purnima, if you have any little doubt, so no need to feel shy, please let me know right now. बाकी मेरा कोशिश यही होता है कि सब कुछ आपको डिटेल में विद एग्जाम्पल आपको समझाया जाए. अब हम अपना ट्रांसफॉर्म टैब कल की क्लास में हम इसको कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे. ओके Okay, ma'am. ओके, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. सो बाय गाइस. अब आपको पता है इसको सेव कैसे करना है. यस, यू नो, कम इन योर फाइल, क्लोज एंड अप्लाई. अब ये सेव जो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया है वो सेव हो गया. अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सिंपली ओपन करेंगे अपनी रिपोर्ट को और ट्रांसफॉर्म डाटा की हेल्प से हमारे पेंडिंग जो चेंजेस है उसको हम अप्लाई करेंगे. ओके, ऐसे आपको क्या कर लेना है, सेव कर लेने हैं अपने चेंजेस को और सिंपली क्लोज योर पावर बीआई. दैट्स फॉर ऑल टुडे. सो बाय एवरीवन. Bye, ma'am. Bye. बाय गाइस.